से लहराता हुआ देखते हैं, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तिरंगा को देखकर हमें देशभक्ति की भावना और सुदृढ़ हो जाती है। तिरंगा हमें ये भी याद दिलाता है कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा तिरंगा हमारी आज़ादी, हमारी अस्मिता और आन बान शान का प्रतीक है। देश भर में, यहाँ तक कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, बड़े उत्साह, उमंग और जोश के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम यानी श्रीमती रंजना गौहर और उत्सव, आज़ादी का ये उत्सव सारे जहाँ से अच्छा पिछले 18 सालों से मना रहे हैं। हम याद करते हैं स्वतंत्रता के कवियों और कलाकारों को और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को। तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं और स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। नमस्कार। श्रीमती रंजना गौहर और उत्सव की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है उत्सव सारे जहाँ से अच्छा की पहली संध्या हम आप सबका स्वागत करते हैं। On behalf of Srimati Ranjana Gohar and Utsav, I welcome you to the first evening of the two-day festival Sare Jahan Se Acha, celebrating the spirit of freedom. In this annual festival of Utsav, the artists pay heartfelt tributes to the motherland, Bharat, and to all those who made the supreme sacrifice for our motherland, India. We have been celebrating this festival for 18 years. Today, this festival has become so popular that we are getting appreciation and requests also from artists globally who wish to perform at this festival. This festival is sponsored by the Ministry of Culture, Government of India, in collaboration with India Habitat Center, Radico, and Oil India. We are honored to have with us today senior dancers, Srimati Shobna Narayan, senior Kathak dancer, guru, and Sangeet Natak Academy awardee, Sangeet Natak Academy and Padma Shri awardee, founder, director of Delhi International Arts Festival, Srimati Pratibha Prahlad, senior Kathak dancer, guru, Sangeet Natak Academy awardee, Vidushi Gitanjali Lal, senior Bharatnatyam dancer and guru, Geeta Chandranji, is she here? Well, we're expecting her, she's a Kuchipudi dancer, theatre artist, lawyer, Srimati Rashmi Vaidyanathan. May I request them to kindly come on the stage to light the ceremonial lamp. And I request the founder president of Utsav, Srimati Ranjana Gohar, to kindly come on the stage and join the artists for lighting the lamp. We have a very, very senior Kathak artist, guru, Srimati Manjushri Chatterjee. मंजू दी आपसे निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें।
उत्सव की ओर से हम आप सबका अभिनंदन करना चाहेंगे। Thank you. We are also honored to have in our midst Dr. Ramesh Chandra Gaur, Director of the National School of Drama, Chairman of Art Carat, Shri Kamal Modi, Shri Navneet Soni, Trustee IIC and former Chief Commissioner of Income Tax, well-known Kuchipudi Guru Srimati Kaushalya Reddy, well-known Mohiniyattam dancer Jayaprabha Menon, and well-known traditional and contemporary dancer Santosh Nair. May I request you to kindly come on the stage. We welcome in our midst Srimati Geeta Chandran, Senior Bharatanatyam dancer, Guru, Sangeet Natak Academy and Padma Shri awardee. Request her also to kindly come on stage.
On behalf of Utsav, we'd like to felicitate our distinguished guests. As you know, every year Ranjana ji gives the Utsav Samman, and this year the Utsav Samman is being conferred upon eminent musicians, Ustad Wasifuddin Nagar and Pandit Ajay Prasanna. I request them to kindly come on stage. I wonder if Ustad Wasifuddin Nagar has arrived. He comes from Gurugram, so it's a long journey, and I hope he's not caught in a traffic jam or something. We are beginning. Pandit Ajay Prasanna. Disciple and son of Sangeet Nayak Academy awardee, renowned Guru Pandit Bholanatha Prasanna. Pandit Ajay Shankar Prasanna is an internationally acclaimed classical flautist. आपने समस्त विश्व में रसिकों को अपनी बांसुरी के ताने बाने में गिरफ्त कर लिया है, मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप आकाशवाणी के सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट हैं। पंडित अजय प्रसन्ना अपनी उत्कृष्ट ब्लोइंग तकनीक के माध्यम से बांसुरी को नए आयाम प्रदान किए हैं। आप लय पर अपनी पकड़, प्रस्तुति में सुंदरता, प्रवाह, परिपक्वता और निपुणता के लिए जाने जाते हैं और वादन के तंत्रकारी और गायकी दोनों ही पक्षों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। He has received 3 Grammy Award nominations and numerous awards in India. Pandit Ajay Prasanna has dedicated 45 years in serving Indian classical music and taking forward his father and guru, Pandit Bholanatha Prasanna's rich musical legacy. Utsav is privileged to confer the Utsav Samman 2023 upon Pandit Ajay Prasanna for his contribution to art and culture.
मुझे अजय जी को आज ये सम्मान देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि अजय जी से मेरा रिश्ता है 1990 से, जब से हमने रिकॉर्डिंग्स शुरू की हैं। आज तक दिल्ली की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरी जिसमें अजय जी ने अपनी मधुर बांसुरी का योगदान न दिया हो। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज भी जो प्रस्तुति आप देखेंगे इसमें भी अजय जी ने कमाल की फ्लूट बजाई है इस रिकॉर्डिंग में भी। तो मैं बहुत गर्व खुद महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, वेरी यंग when we started working together, and I am so happy to see him blossom the way he has blossomed. No artist, it's not easy journey, and I congratulate him for his achievements, and I'm very proud of him. Thank you, Ajay ji. सभी को नमस्कार। मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे बोलना आता भी नहीं है। हाथ में बांसुरी होती तो वही बोल जाती है, अभी आज वो भी नहीं है। रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। एंड सामने मेरे सारे अजीज़ लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया, और आज आपके सामने हूँ। मैं बहुत तहे दिल से रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। We'll begin with our program in just a few minutes from now. We request you to kindly switch off your cell phones or at least put them on silent mode. Thank you. This evening, Ranjana Kaur presents a dance drama, Khud Mein Kabir, Kabir Mein Hum, a production of Ranjana's Odissi Dance Academy. Padma Shri and Sangeet Natak Academy awardee Guru Ranjana Kaur is a world-renowned Odissi dancer, and her name figures amongst the most distinguished exponents of this art form. Ranjana ji has received her training from legendary Guru Mayadhar Raut. She has travelled globally and has performed solo and group productions, spreading the beauty of Odissi art form. She is a multifaceted artist, as she has worked in choreography, theatre, films, painting, dance education, and has also authored a book titled Odissi, the Dance Divine. Ranjana ji is an independent film producer, researcher, and scriptwriter. She has produced films, documentaries, and TV serials for various government departments, agencies, and private institutions for the promotion of Odissi and other themes of Indian art and culture. These films, documentaries, and serials are well researched and are invaluable sources of information determined by various government and private institutions worldwide. As an enthusiastic promoter of Indian art and culture, she organizes major festivals and has contributed immensely to the arts and artists by not only hosting festivals but by also curating workshops, seminars, and lectures. Srimati Ranjana Kaur was awarded the prestigious Padma Shri by the President of India in 2003 and the National Sangeet Natak Academy Award in 2007. She has also received numerous accolades for her contribution to the field of Indian classical dance. Ranjana Kaur has been involved in the reputed national award bodies such as Kalakshetra Chennai, Ministry of Defence. A former board member of Sangeet Natak Academy, she also serves as an advisor to many schools and colleges.
Ranjana Gohar is the founder-president of Utsav Educational and Cultural Society, carrying forth the traditions of Guru Shishya Parampara, where she guides her disciples into the nuances and intricacies of Odissi dance. She has proven to be an indispensable guide to all her disciples. Guru Ranjana Gohar is the artistic director of Utsav's repertory, which is well known for its high standards of excellence and has performed widely in India and abroad. Using her creative talent, she has skillfully blended the traditional with the contemporary in her various thematic productions such as Chitrangada, Nal Damayanti, Kabir, Matsyavatar, Om Namah Shivaya, to name a few, and her imagery is both innovative and individualistic. She has also conceptualized and curated solo presentations that accentuate her knowledge as a diversified choreographer of dance and has expanded her Odissi repertoire by choreographing poems by various saint poets in Hindi from the Bhakti Kal. She has created multi-style productions such as Tridhara, Samarpan and Nrityadhara. Ranjana ji is an amalgamation of personage of and ingenuity. She is a visionary role model for younger generation. Utsav Educational and Cultural Society is amongst the foremost cultural institutions of the country, based in Delhi, which is working in the field of Indian classical dance since 1987. Srimati Ranjana Gohar has contributed tremendously to propagate and popularize Indian art and culture through performances, seminars and lectures, and by organizing dance and music festivals such as Sutaram, a young dancers festival to celebrate World Dance Day, an international dance festival, Unbound Beats of India, and Sare Jahan Se Acha in the month of August, where eminent and senior artists celebrate the spirit of India's independence. Utsav has a repertory of very efficient and talented senior dancers trained by Guru Ranjana Gohar. Utsav's repertory has performed in various festivals in India and abroad in countries such as Korea, France, Egypt, Spain, Argentina, several countries in Africa and South America, Japan, China, Singapore, and Philippines, to name a few. Many students of Utsav are receiving national scholarship from the Ministry of Culture and from various other organizations like ICCR under the Ministry of External Affairs, Sahitya Kala Parishad, Delhi government, and some of the students are from abroad, from countries like Poland, Norway, Chile, Argentina, UK, Trinidad, Russia, Germany, Brazil, to name a few. The musical Nritya Natika or dance drama, Khud Mein Kabir, Kabir Mein Hum, is a presentation that touches upon the life and times in which Kabir lived in Varanasi. Saint poet Kabir, whose name itself means greatness, was born in Kashi and raised by a family of weavers. And he too wove, through his thoughts, the fabric of wisdom, which underlies the philosophy, moral code, and way of life of every Indian even today. The production is a fusion of his poems and bhajans, performed to scintillating music, which is moving and touching. It has been dramatized with dialogues from the eminent playwright Bhishma Sahani's acclaimed drama, Kabira Khada Bazaar Mein, which depicts the environment and struggles of Kabir in the medieval period. The dance drama will be rendered in a creative format with Odissi dance form as its base. Through this production, Ranjana hopes to bring alive the ideas of the revolutionary thinker which resonate even today with the society that we live in and hold utmost relevance. Guru Ranjana Gohar presents her dance drama, Khud Mein Kabir, Kabir Mein Hum.
ये कहानी है करीब 600 साल पहले की। माना जाता है कि काशी के पास एक तालाब था जिसे आज भी लहरतारा तालाब के नाम से जाना जाता है। उस तालाब में कमल के फूल खिलते थे। उन फूलों के बीचों बीच एक दंपति को नवजात शिशु मिला। हमारी आज की प्रस्तुति उसी नवजात शिशु के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम हुआ कबीर, यानी महान। पेशे से वो बुनकर था, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर चला गया कि आज उसके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। आइए आज भारत में कबीर को ढूंढते हैं, अपने अंदर के कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। कबीर एक एहसास है, वह जीवन जीने का ढंग है, तरीका है। भारत जिन तत्वों को मिलाकर बना है, उसमें से एक तत्व है कबीर। लहरतारा तालाब से आरंभ हुई ये दास्तां आखिर क्या थी? कौन था कबीर?
नीरू और नीमा नाम के मुसलमान दंपति ने जब इस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास देखा तो निहारते ही रह गए। तुरंत उसे गोद उठा लिया और अपने घर ले आए। नीरू और नीमा का जीवन बेहद गरीबी में गुजरता था। पिता नीरू जुलाहे का काम करता था और यही काम उसने कबीर को सिखाया। कबीर जुलाहा तो बन गया, लेकिन युवा कबीर बहुत से गहरे सवाल उठाता रहा। जिस समाज के स्तर में कबीर पला बढ़ा, वो स्तर कुछ था ही ऐसा कि उसे निरादर सहना पड़ा। लोगों ने हमेशा ही उसका तिरस्कार किया। युवा कबीर इस उम्र तक आते आते समाज के नियमों के प्रति विद्रोही बन चुका था, लेकिन मन में यही रहता। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वो है शाहनशाह कबीरा, वो है शाहनशाह। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, इधर लड़का आवारा हो गया, हमारी जान लेकर रहेगा। न जाने किसको उठा लाई। तब तो बड़ी मोहगर बननी थी, अब किए को भुगतो। ये तो सांप पालते रहे, न दीन के रहे न जहां के। क्यों उसे गाली देते हो? वो तो तुम्हें सर पे उठाए रखता है, और एक तुम होगी। अब कुछ मत कहो जी, उस जैसा बेटा तो दिया लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। किस्मत वाले थे जो ऐसा सोना बेटा पाया। हमारा घर उज्जर हो गया, कभी ऊंची आवाज में बोलता नहीं है। आ गया बेटा? हाँ माँ। आ, इधर बैठ जा, मैं सत्तू बना लाती हूँ तेरे लिए। ले, खा ले बेटा। मेरे दोस्तों में से कोई आया था माँ? रैदास, पीपा, सेना, कोई तो आया होगा। नहीं आया। सुन बेटा, तू लोगों से उलझता फिरता है, ये ठीक नहीं है। मैंने क्या कहा है माँ? आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं माँ। दुकान में सेठिया पड़ा सो रहा था, मैंने सोचा जागेगा तो धान बेचने की बात करूंगा। उधर दो कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे। पीछे पीछे गाय का बछड़ा चला जा रहा था। मुझे ना बहुत बुरा लगा माँ। मैंने कहा, दिन भर रोजा रहत है, रात हनन है गाय। ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कुछ सोच समझ कर बात किया कर। ये काशी है बेटा, हिंदुओं का तीर्थ है, और यहाँ का कोतवाल मुसलमान है। सभी कहते हैं बड़ा बेरहम आदमी है, जिंदा दफना देगा। तू हर किसी से दुश्मनी बोल लेता फिरता है। बेटा, मेरा दिल बहुत डरता है। सुन माँ, एक बात पूछूं? सच सच बताएगी? क्या है? बुझावल बुझाता है। पहले तिरवाचा दे की सच बताएगी। मेरे सिर पर हाथ रख के क्या? कहने की बात हुई तो कहूंगी, ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। पूछ, क्या पूछता है? सच बताओ माँ, क्या तुम मुझे कहीं से उठाकर लाई थी? हैं? मैं किसी और की औलाद हूं? तू मेरी जीत जान है रे। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात कही। जिसकी गोद में पलकर बच्चा बड़ा होता है, वही उसकी मां होती है।
कोई और मुझे जमकर फेंक गई थी ना? कौन थी वे? तुमसे कभी मिली? घोड़े पर फेंक गई थी। जिस दिन तू मुझे मिला उस दिन हम गंगा पार कर जुलाहों की बस्ती की तरफ जा रहे थे। तभी मैं पानी पीने के लिए एक तालाब के पास उतरी। तू मुझे वहां पड़ा मिला। तेरे ओठों पर अभी भी तेरी माँ का दूध लगा था। तेरा बाप और मैं तुझे निहारते ही रह गए। वो तो मुझे मरने के लिए फेंक गई थी और तुम लोग मुझे उठा लाए। वो भी बदनसीब थी कबीरा, वरना अपना बच्चा कौन फेंकता है। तू उसे जानती है माँ? तुझसे कभी मिली थी? मिली थी। उसे पता चल गया था कि तुम्हें मैं उठा लाई हूं। कहीं छिपकर देखती रहती थी। वो हमारी झोपड़ी के आसपास आकर मंडराती रहती, अंदर झांक के देखती, फिर लौट जाती। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो बात खुल गई। कौन थी वे? कोई बेवा बामनी थी। हैं? तब तो मैं बड़ी ऊंची जात का हूं मां। बामनी का हरामी बेटा। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं मां। अच्छा मां, तू जानती है वो कहां रहती है? आज तुझे फिर किसी ने कोड़े मारे हैं? ये कुछ भी तो नहीं हुआ मां। मैं तो इसे भूल भी चुका था। तो ये क्या करता फिरता है कबीरा? मेरा दिल दहलता है। जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उन लोगों के दिल में रहम नहीं होता बेटा। अरे मेरे दिल में कोई सवाल उठे तो मैं पूछूं भी नहीं। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं मां। मैं क्या करूं? बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पंडित शास्त्री सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। बेटा तू ना पढ़ा ना लिखा, तू अपना काम देख। तुझे सवालों की क्या पड़ी है? ठीक है, कोई हिंदू पूछेगा तो कहूंगा ब्राह्मणी का बेटा हूं, कोई तुर्क पूछेगा तो कहूंगा नीमा मुसलमान का बेटा। यही ना? इसमें हिंदू भी कोड़े नहीं मारेंगे और तुर्क भी कोड़े नहीं मारेंगे। तू यही चाहती है ना मां? संत न छोड़े संत कई जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुभंगा बेटिया शीतलता न संत। संत न छोड़े संत कई जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुभंगा बेटिया शीतलता न संत। साधु संतों की आम समझ से परे कबीर का मानना था कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए संसार को त्यागना जरूरी नहीं है। वे सभी सांसारिक कार्यों और जीवन की गतिविधियों में भाग लेते थे। वे अक्सर अपने साथी जुलाहों के साथ कपड़ा बुनते और गीत गाते। यही माहौल था जब कबीर ने कहा, शरीर की तुलना सूक्ष्म बुने कपड़े से करी जा सकती है, जिसके हर अंश में राम नाम का वास है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रोए। राम नाम रस पीने, राम नाम रस पीने। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस पीने, राम नाम रस पीने। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्वों की ऊनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की ऊनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मेली राम नाम रस पीने। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा लाल लाल कर दीनी। राम नाम रस पीने। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस पीने, राम नाम रस पीने। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस पीने, राम नाम रस पीने, राम नाम
कबीर मानते थे कि जी हुई जिंदगी और उसके अनुभव ही ऊपर वाले से जुड़ने का माध्यम होते हैं। वह कहते कि जब जब घड्डी चलती है तो उसमें से स्वयं सुरताल निकलते हैं। इसी सुरताल में डूबकर कबीर आनंदित हो उठते। यह समय कई गहरी सोच विचारों का समय होता था। सुमिरन लगन लगाए के मुझ से कछु न बोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। हाथ कान का छाड़ रे। हाथ कान का छाड़ रे। मन का
कबीर के समय में काशी नगरी भारत का हृदय थी। सब धर्म के अपने अपने मठ थे। वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिर थे, मस्जिद थे। काशी को भारत का सबसे पुण्य तीर्थ स्थान माना जाता था। कबीर के विचार में केवल तीर्थ करने से अथवा संतों की संगति में रहने से पुण्य नहीं मिलता। कबीर ना ही पंडितों को मानते थे, ना ही मौलवियों को। आखिर कबीर के पास था ही क्या? थे तो केवल शब्द, और जब शब्द कुछ ऐसे तीखे हों तो वे अपने आप ही काफी होते हैं। प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे बोलने वाले कबीर का मानना था कि ऊपर वाला न हिंदू है न मुसलमान। कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते थे। कबीर के लिए गुरु केवल एक एहसास था, एक अनुभव था। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लो भूलग जाए। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लो भूलग जाए। हमसे तुम रे और है, हमसे तुम रे और है, तुम सा हमरा नाही, तुम सा हमरा नाही।
बहुत गरीब निवास, जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। नैया बड़ी वजरा, नैया बड़ी वजरा। गुरबिन कैसे लागे पार, गुरबिन कैसे, गुरबिन कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। नैया बड़ी वजरा, नैया बड़ी वजरा, नैया बड़ी। कबीर की मां नीमा को सदैव यह भय रहता था कि उसका बेटा दुनिया जहां को छोड़कर कहीं चला न जाए। वह उसे खूंटे से बांधने का कोई उपाय ढूंढती रहती थी। उसे लगा कि कबीर की शादी ही उसे बांधकर सांसारिक जीवन में रखेगी। कबीर के लाख मना करने पर भी मां के सामने उसकी एक न चली। अंत में हार कर कबीर मां की जिद के आगे झुक गए और उनकी शादी हो गई। कर्म गति तारई नाही टरी, कर्म गति तारई नाही टरी। कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी होके रही, होनी होके रही। ए, सुन, तुझे ब्याह कर भी लाया तो कहां? जले हुए झोपड़े में। इधर बाहर उसारे में मेरी खड्डी थी और बापू की खड्डी पिछवाड़े में थी। दोनों जल गई, एक खपच्ची नहीं बची। मगर अब तू जो इस घर में आ गई है तो लगता है कुछ भी नहीं जला है। झोपड़े में उजियाला हो गया है। मेरा बरसेगा। बाहर सूत रखा है, भीग जाएगा। मैं सूत उठा लाऊं। यहाँ भी तो छत टूटी है, पानी यहाँ भी गिरेगा। न घर न द्वार, बापू ने हमें कहाँ लाकर झोंक दिया। एक पगलेट साधु के साथ अंधरा गए थे, न घर देखा न वर। जब से झोपड़ियां जली है हम सब काम बाहर अंगना में करते हैं। यहाँ अंदर कौन सा और बाहर कौन सा, हमें तो कुछ सूझता नहीं। यहाँ दीवार के साथ रखेंगे, यहाँ बौछार से आड़ रहेगा। इधर छज्जे पे रख देते हैं, पानी कम गिरेगा। 2-3 दिन में इधर छप्पर डाल देंगे। बशीरा कहता था जल्दी ही डाल देंगे। तेरा घर द्वार नहीं था तो तूने ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छवाता, बाद में हमें लाता। हाँ, कहती तो ठीक हो। तुम्हें यहाँ आना अखर रहा है। तेरे बाप ने जबरदस्ती तेरी शादी की है ना? तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी?
ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों? बापू ने हमसे पूछा थोड़ी था। और अगर हम पूछे तो? क्यों चुप क्यों हो गई? अगर हम पूछे तो? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद। अब क्या तू क्या? फिर भी बता दूं? सुनेगा? बता दे। हमारे घर के पीछे एक साहूकार का छह छबीला बेटा रहता था। वो हमें ब्याहना चाहता था। उससे हमारा प्रेम था। तू उससे ब्याह करना चाहती थी? और नहीं तो क्या, उसे हम जानती थी, वो हमें जानता था। तुम्हें तो हम जानती भी नहीं थी। ओह, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ तो हुआ ही, पर इसका दोष हम तुम्हें थोड़ी दे रही है। बापू ने ब्याह कर दिया तो हम यहाँ चले आए। अब तक तो दोष मेरा नहीं था, पर अब तुम्हें घर पर रखा तब तो दोष मेरा ही होगा। फिर तू क्या करेगा? देख, उसके साथ तू खुश रहेगी तो जरूर उसी के पास चली जा। तूने पहले कहा होता ना तो मैं तुझे यहां लाता ही नहीं। अब अकेली उसके घर चली जाऊं रात के वक्त बारिश में? भाग कर जाती तो भी तो अकेली ही जाती ना। पर नहीं, तू अकेली मत जा। मैं तुझे पठाने ले चलता हूं। कहां पठाने ले जाएगा? उस साहूकार के बेटे के पास छोड़ आऊंगा। उसने कहा भी तो था कि भाग कर मेरे पास चली आना। तू हमें पठाने ले जाएगा? सच? तू मुझे वहां छोड़ आएगा? हाँ, तो चिंता नहीं कर, मैं ही तुझे ले चलूंगा। उठा ले कपड़ा लत्ता, ये रही तेरी गठरी मोटरी। और पानी जो बरसने लगा है? मगर तेरे कपड़े लत्ते तो मैं कल भी पहुंचा सकता हूं। हाँ, इधर ये पिटारी उठा ले, इसमें तेरे गहने हैं। अरे अब ये मेरे कहाँ हुए? गहने तो ससुराल के होते हैं। अरे तेरे ब्याह के हैं, जहां रहेगी वहां पहनना। हाँ, अभी बूंदाबांदी बहुत नहीं हो रही है, चल निकल चल। नहीं, हाँ अपने आप चली जाऊंगी, तू यहीं ठहर। देख, अगर तू नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ जाऊं तो तू जरूर अकेली निकल जा। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। जब तू उसके घर पहुंच जाएगी तो मैं लौट आऊंगा। अच्छा